Hello friends, in this video we will discuss how to solve problem on surface integral. We will solve example step by step. So first we write what is surface integral. So surface integral of vector function f over surface S is defined as double integral over surface S f vector dot n cap ds. Here f vector is a vector function, is a vector function, and n is a unit normal vector. And so here we find n cap. So n cap equals to gradient of phi upon magnitude of gradient of phi, and here phi is a surface, and we also find ds. So ds equals to dx dy upon n cap dot k cap. इसमें ds इक्वल्स टू dx डॉट dy है. इसमें हम जो सरफेस का प्रोजेक्शन होता है वो हम x एंड y एक्सिस पर लेते हैं. So here is all details about how to solve surface integral. So now we will solve a question. So here is the question. So evaluate double integral s function f dot n cap ds. So basically ये surface integral दे रखा है वेक्टर फंक्शन f का, where f vector equals to x plus y square I cap minus twice x j cap plus twice yz k cap, and S is the surface of the plane twice x plus 5 plus twice z equals to 6 in the first octant. So in this question we have a vector function f and a surface S and evaluate surface integral. So first we write f vector dot n cap dx. So in this first we find n cap. N cap equals to gradient of phi upon magnitude of gradient of phi. Phi is a surface, so surface equals to 2x plus y plus twice z equals to 6. So first we evaluate gradient phi. Gradient del upon del x I cap plus del upon del y j cap plus del upon del z k cap multiplied by twice x plus y plus twice z. So we solve this twice I cap plus j cap plus twice k cap. So we solve this, and now we find n cap. We put the value of gradient phi twice I cap plus j cap plus k cap upon gradient phi is the magnitude of gradient phi. So 2 2s are 4, 1, here is 2k. So here is 1. So 4 plus 1 plus 4 equals to 9, and under root of 9 equals to 3. So here is 2 by 3 I cap plus 1 by 3 j cap plus 2 by 3 k cap. And now we evaluate ds. So ds equals to dx dy upon n cap dot k cap. We take projection in coordinate x and y. So here is dx dy and upon n cap. So dx dy. When we multiply n cap dot k cap, n cap is this. When you multiply this by k cap, so I and j cap is equal to 0 because I dot k equals to cos 90. Cos 90 equals to 0. So I and j is 0. Here is find 2 by 3. So this is 3 by 2 dx dy.
So now we calculate f vector dot n cap. F vector dot n cap equals to, what is f vector? Here we write f vector x plus y square I cap minus k twice x j cap plus twice y z k cap. हम इनका डॉट प्रोडक्ट करना है. डॉट प्रोडक्ट बाय एन कैप. एन कैप क्या है? 2/3 आई कैप प्लस 1/3 जे कैप प्लस ट्वाइस अपॉन में 3 के कैप. तो हम यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट करते हैं इसका. आई डॉट आई होता है cos 0 होता है 1. तो यहाँ ये हो जाएगा x प्लस वाई स्क्वायर ट्वाइस बाई 3 माइनस के ट्वाइस x अपॉन में 3 प्लस 4y z अपॉन में 3. तो इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं. 2/3 x प्लस 2/3 वाई स्क्वायर माइनस के ट्वाइस x/3 प्लस 4y z अपॉन में 3. ये यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा. इसमें से हम 2/3 y कॉमन ले लेते हैं. 2/3 y कॉमन ले लिया तो यहाँ बचा y प्लस ट्वाइस z. तो हमें यहाँ पे इस फंक्शन को आप देख सकते हैं कि ds क्या है? प्रोजेक्शन लिया है हमने x और y एक्सिस पे. तो हमें इसको इंटीग्रेट करना है x एंड y के रिस्पेक्ट में. अब यहाँ पे इस फंक्शन में z आया है तो हम z को रिप्लेस करेंगे x एंड y से. किसके? सरफेस की इक्वेशन से. सरफेस की इक्वेशन है 2x प्लस वाई प्लस ट्वाइस z. सरफेस की इक्वेशन क्या है? ट्वाइस x प्लस वाई प्लस ट्वाइस z इक्वल्स टू 6. यहाँ से z निकल के आएगा 6 माइनस के y माइनस के ट्वाइस x अपॉन में 2. अब हम ये यहाँ पे रख देंगे, पुट कर देंगे. 2/3 y प्लस ट्वाइस 6 माइनस के y माइनस के ट्वाइस x अपॉन में 2. तो 2 कैंसिल हो गया. ये आएगा 2/3 y प्लस 6 माइनस y माइनस के ट्वाइस x. ये कैंसिल हो जाएगा. ट्वाइस अपॉन में 3 y 6 minus के twice x. Here we take 2 common, so 4 upon में 3y 2 common 3 minus के x. अब हमें इसे फाइनल सॉल्व करते हैं. तो f वेक्टर डॉट n कैप ds. इसका हमने प्रोजेक्शन लिया है x एंड y एक्सिस पे. तो ये हो जाएगा df तो n कैप ds क्या था? dx dy n कैप डॉट k कैप. अब हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेते हैं. तो f वेक्टर डॉट n कैप आया था आपका ये रहा 4 अपॉन में 3 y 3 माइनस के x. और ds आपका क्या आया था? ds 3/2 dx dy 3 अपॉन में 2 dx dy 3 2. तो ये आपका आ गया ट्वाइस y 3 माइनस के x dx dy. अब हमें क्या करना है? लिमिट पुट करनी है. तो इसमें सरफेस की इक्वेशन थी ट्वाइस x प्लस वाई प्लस ट्वाइस z इक्वल्स टू 6. ये रही सरफेस की इक्वेशन. ठीक है. अब हमने क्या किया था? इस सरफेस का प्रोजेक्शन लिया था x एंड y एक्सिस पे. तो z इक्वल्स टू हो जाएगा 0 और इसकी इक्वेशन रह जाएगी ट्वाइस x प्लस वाई इक्वल्स टू 6. अगर हम इसे ड्रॉ करेंगे x एंड y एक्सिस पे तो ये कुछ x एक्सिस पे होगा इसका 3, y एक्सिस पे 6 और ये हो जाएगी ट्वाइस x प्लस वाई इक्वल्स टू 6. अब पहले इसमें यहाँ पे हम इसे dy dx कर देते हैं. अब ये मैंने ऐसा क्यों किया है? क्योंकि अगर हम पहले y की लिमिट रखेंगे ना तो इसकी कैलकुलेशन इजी हो जाएगी. तो y की लिमिट के लिए पहले तो ये 0 हो जाएगा, लोअर लिमिट 0. अपर लिमिट हो जाएगी इसकी 6 माइनस के ट्वाइस x 6 माइनस के ट्वाइस x.
और x की लिमिट क्या होगी 0 to 3, 0 to 3। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। 0 to 3 y का होगा ट्वाइस वाई स्क्वायर अपॉन में 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 माइनस के x डी एक्स, और इसकी ये लगेगी लिमिट 0 to 6 माइनस के ट्वाइस x। तो 0 to 3 6 माइनस के ट्वाइस x का स्क्वायर 3 माइनस x डी एक्स। इसे थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं। इसमें से टू कॉमन ले लेंगे तो 2 टू ज़ा स्क्वायर 2 की पावर 2 4 हो जाएगा, और ये आएगा 3 माइनस के एक्स स्क्वायर 3 माइनस के एक्स डी एक्स। तो 4 बाहर आ गया, 0 टू 3 3 माइनस एक्स क्यूब डी एक्स। इसे सॉल्व करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे, 3 माइनस 6 पावर 4 अपॉन में 4 एक्स का डिफरेंस ये आएगा माइनस के 1, हो जाएगी 0 टू 3, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। जब हम 3 पुट करेंगे तो 3 माइनस 3 0 हो जाएगा, यानी इसकी लोअर लिमिट होगी, लोअर लिमिट माइनस 3 माइनस 0 4 अपॉन में माइनस 1, यानी ये आएगा 81। तो ये आपका सॉल्व हो गया। ये आपका इस क्वेश्चन, बेसिकली सारे क्वेश्चन इसी टाइप के होते हैं, सब में ऐसे ही आपको पहले एन कैप निकालना होता है, फिर डीएस, और ऐसे ही सॉल्व करना होता है। अब हम इसका एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। सो हियर इज द क्वेश्चन, इवेल्युएट डबल इंटीग्रल एस डबल इंटीग्रल ओवर एस वाई जेड आई कैप प्लस जेड एक्स जे कैप प्लस एक्स वाई के कैप। ये आपका वेक्टर फंक्शन हो गया, डॉट एन कैप डी एस, यानी इसका सरफेस इंटीग्रल पूछा है। वेयर एस इज द सरफेस ऑफ द स्फीयर, ये आपका सरफेस दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर इन द फर्स्ट ऑक्टेंट। सो फर्स्ट वी फाइंड एन कैप। एन कैप इज ग्रेडियंट ऑफ एफ अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेडियंट ऑफ एफ। इसे हम सॉल्व करेंगे। लास्ट वाला क्वेश्चन मैंने सारा डिटेल स्टेप बाय स्टेप किया, इसमें मैं थोड़ा कुछ स्टेप स्किप करता हुआ चलूँगा। तो यहाँ पे अगर आप ग्रेडियंट ऑफ एफ निकालेंगे तो आपका निकल के आएगा ट्वाइस एक्स आई कैप प्लस ट्वाइस वाई जे कैप प्लस ट्वाइस जेड के कैप। अब इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 4z स्क्वायर। तो नीचे से 4 कॉमन आएगा, जो कि बाहर निकल के 2 से ऊपर चला जाएगा, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। और ये नीचे आपका आया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, जो कि अंडर रूट इसकी वैल्यू क्या है इक्वल्स टू ए स्क्वायर। तो नीचे रह जाएगा ए, एक्स आई प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप अपॉन में ए। अब हम क्या करते हैं, एफ वेक्टर डॉट एन कैप फाइंड कर लेते हैं। एफ वेक्टर आपका क्या है इसमें, हाँ, वाई जेड आई कैप प्लस जेड एक्स जे कैप प्लस एक्स वाई के कैप डॉट प्रोडक्ट ऑफ बाय एन कैप। एन कैप क्या है आपका, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप अपॉन में ए। तो इसे सॉल्व करेंगे, क्या आएगा, एक्स वाई जेड प्लस एक्स वाई जेड प्लस एक्स वाई जेड अपॉन में ये हो जाएगा आपका 3xyz अपॉन में ए। अब हम सरफेस इंटीग्रल क्या रहता है, एफ वेक्टर डॉट एन कैप डी एस। ये आपका एफ डॉट एन कैप आ गया 3xyz अपॉन में ए। यहाँ डी एस होगा डी एक्स डी वाई अपॉन एन कैप डॉट के कैप। एन कैप क्या है यहाँ पे, एन कैप का इस पर मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा जेड अपॉन में ए। थ्री एक्स वाई जेड अपॉन में ए डी एक्स डी वाई, इसका आएगा जेड अपॉन में ए, जेड अपॉन में ए। तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो आपका 3 बाहर आ गया, ये यहाँ प्रोजेक्शन जो लिया है ना उसको हम आर कह रहे हैं यहाँ पे। तो ये हो जाएगा एक्स वाई डी एक्स डी वाई। तो
तो हम लिमिट के लिए क्या देखेंगे, आपका सरफेस क्या दे रखा है। सरफेस आपका इस क्वेश्चन में दे रखा है स्फेयर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर टू ए स्क्वायर। अब जब हम इसका प्रोजेक्शन लेंगे एक्स वाई एक्सिस पे तो एक सर्कल का प्रोजेक्शन आएगा, यानी जेड इक्वल्स टू 0 पे ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर। अब आप इसकी सो हियर वी फाइंड लिमिट ऑफ एक्स एंड वाई। सो एक्स की लिमिट हो जाएगी आपकी 0 टू एक्स की जाएगी अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर, और वाई की लिमिट होगी 0 टू ए, क्योंकि ये एक सर्कल है तो वाई की लिमिट हो जाएगी 0 टू ए। अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। 0 टू ए वाई एक्स का इंटीग्रेशन के एक्स स्क्वायर अपॉन 2 लिमिट होगी इसकी 0 ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी वाई 3 0 टू ए। लिमिट हम पुट करेंगे तो यह हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर अपॉन 2 डी वाई। ये 2 हमने बाहर ले लिया, 0 टू ए वाई ए स्क्वायर माइनस के वाई क्यूब डी वाई। अब हम इसका भी इंटीग्रेशन करते हैं तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन 2 ए स्क्वायर माइनस वाई क्यूब का हो जाएगा वाई की पावर 4 अपॉन में 4 0 टू ए। अब हम लिमिट पुट करेंगे तो लिमिट हो जाएगी इसकी ए टू पावर 4 अपॉन 2 माइनस ए की पावर 4 अपॉन में 4। इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 3 अपॉन में 8 ए क्यूब। तो ये वाला क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो गया। सो hope you guys understand how to solve surface integral. If you have any doubt, comment below. Thanks for watching.